Good morning to everyone. Let us read the sum in front of your screen. Delta Limited issued 25 lakh equity shares of rupees 10 each at par. 7. See here, how many shares are there to sell? How many shares are there? 25 lakh. कितना शेयर से सेल करने के लिए? 25 लाख. तो सेल मतलब डेल्टा लिमिटेड ने इश्यू किया है 25 लाख शेयर्स. एक शेयर है 10 रुपीज का एंड पार में इश्यू करेंगे. इसमें 7 लाख शेयर्स आर इश्यूड टू द प्रमोटर्स. यू नो, प्रमोटर्स को जो शेयर्स देते वो एलिजिबल नहीं होता अंडर राइटिंग के लिए. हमने डिस्कस किया था when we were doing the introduction lecture. We had discussed this. The shares which are issued to the promoters are not to be considered for underwriting. तो इसके ऊपर तो कोई कमीशन नहीं जाएगा, इसके ऊपर कमीशन कैलकुलेट भी नहीं होगा, because these shares which are purchased by the promoters are not eligible for underwriting. Balance shares offered to the public was underwritten by 3 underwriters P, Q and R. So balance share जो पब्लिक को दिया गया है उसको अंडरराइट किया गया by how many underwriters? By 3 underwriters P, Q and R. How many underwriters? 3 underwriters P, Q and R in the ratio of 2:3:4. 2:3:4 with firm underwriting. Now firm underwriting is given separately 50,000, 60,000 and 70,000 shares each respectively. Total subscription received. Total subscription application received, see, it is excluding firm underwriting like the previous sum we had done, but including marked applications 13,88,000 shares. तो ये सब्सक्रिप्शंस है, ये जो रिसीव हुआ है ये है 13,88,000, but these are including marked applications and excluding firm underwriting. जो 50,000, 60,000, 70,000 shares है वो exclude करके है ये. Like we had done the last sum wherein also the application subscription received was including marked application, excluding firm underwriting. मतलब ये मार्क्ड एप्लीकेशन ये 13,88,000 में मार्क्ड एप्लीकेशन और अनमार्क्ड एप्लीकेशन है. और मार्क्ड एप्लीकेशन दिया हुआ है पी का है 3 लाख, क्यू का है 3,50,000, आर का स्टैम्प लगा है, सील लगा है फॉर 4,50,000 शेयर्स. अनमार्क्ड एंड सरप्लस एप्लीकेशंस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो. Ascertain the liability of each underwriter. तो हमें क्या करना है, each underwriter का कितना liability है वो कैलकुलेट करना है, ascertain करना है. So we will assume here benefit of firm underwriting given to individual underwriter. हम क्या assume यहाँ पे क्या रहेगा? Benefit of, it is not given, right? Not given. So we will, what we will assume, because यहाँ पे ये भी बोला है कि ये टोटल एप्लीकेशन में क्या है, फर्म अंडरराइटिंग को एक्सक्लूड करना है. फर्म अंडरराइटिंग को क्या करना है, एक्सक्लूड करना है. What we are going to assume benefit of firm underwriting given to individual underwriter. जब बेनिफिट देते हैं तो मार्क्ड एप्लीकेशन ट्रीट करते हैं. When the benefit of firm underwriting is given to individual underwriter, we assume the firm underwriting as marked application. जब बेनिफिट नहीं देते तो अनमार्क्ड ट्रीट करते हैं.
यहाँ पे हम ट्रीट करेंगे फर्म अंडरराइटिंग को मार्क्ड एप्लीकेशन एज द बेनिफिट इज गिवन टू इंडिविजुअल अंडरराइटर्स. Let us start. First, what we will do, gross liability. First, let us write gross liability. Ratio is already given 2:3:4. But tell me, promoters को जो shares दिया है उसको include करना है यहाँ पे. प्रमोटर्स को जो शेयर देते हैं उसको इंक्लूड नहीं करना है, उस पे अंडरराइटिंग नहीं होता, राइट? सो 25 लाख माइनस 7 लाख, हाउ मच विल इट कम टू? 25 लाख माइनस 7 लाख, दिस विल बी 18 lakhs. दिस बोला है देखो क्वेश्चन में प्रॉपरली, 7 lakh shares were issued to the promoter and balance were offered to the public, was underwritten by 3 underwriters P, Q and R in the ratio 2:3:4. Clearly given. Balance shares underwritten हुआ है 3 underwriters को P, Q and R. Balance shares बराबर 25 lakhs में 7 lakh जो promoters को दिया गया है उसको माइनस करके balance shares were underwritten by 3 underwriters P, Q and R. 3 underwriters P, Q and R. So 18 lakh को डिवाइड करो, 2 plus 3 plus 4 is how much? 9 ना? 2 plus 3 plus 4 is 9. So 18 lakh into 2 divide by 9 करो, 18 lakh into 2 divide by 9, how much are you getting? 4 lakhs are it. 18 lakh into 2 divided by 9. Are every one of you getting 4 lakhs? 18 lakh into 3 divided by 9. 6 lakh is the correct answer. 18 lakh into 4 divided by 9. 8 lakhs. So we get, when we add all the 3, we get 18 lakhs. इसमें से लेस करेंगे क्या? लेस मार्क्ड एप्लीकेशंस. मार्क्ड एप्लीकेशंस ये तो गिवन है. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. हाउ मच इट इज? 3 lakh. This is 3,50,000. This is 4,50,000. Given, add करो तीनों को. How much you get? 11 lakhs. So अभी बैलेंस देखो कितना आ रहा है. 1 lakhs. How much? 2,50,000. And this is how much? 3,50,000. This will be 7 lakhs. अभी यहाँ पे बिकॉज हमें ये जो टोटल सब्सक्रिप्शन है इसमें बोला गया है कि इट इंक्लूड मार्क्ड एप्लीकेशन but excluding firm underwriting. So 13,88,000 में अगर 11 lakh marked applications है तो remaining क्या रहेगा? Because firm underwriting included नहीं है तो remaining क्या रहेगा? 13,88,000 include marked application but exclude firm underwriting. So 13,88,000 में marked application 11 lakh है, माइनस किया तो बचता है 2,88,000. वो क्या रहेगा? फर्म अंडरराइटिंग नहीं इंक्लूडेड है तो बचा हुआ क्या है? अनमार्क्ड एप्लीकेशंस. सो 2,88,000 इज व्हाट? अनमार्क्ड एप्लीकेशन. सो इफ वी वांट टू नो द अनमार्क्ड एप्लीकेशंस, अनमार्क्ड एप्लीकेशंस इज हाउ मच?
total applications excluding firm underwriting but including marked applications ना, उसमें से हमने marked applications minus कर दिया. So how much of what we get? We get unmarked application as we get unmarked application. So 11,88,000. Sorry, not 11 lakh. It is how much? 13,88,000 minus 11 lakhs. Marked application is 11 lakh. So this will be. So unmarked applications मिल गया, लेस कर देते हैं बिकॉज यहाँ पे बेनिफिट हम दे रहे इंडिविजुअल अंडरराइटर्स को फर्म अंडरराइटिंग का, तो मार्क्ड एप्लीकेशन ट्रीट करना पड़ेगा. बट ये टोटल एप्लीकेशन में तो फर्म अंडरराइटिंग इंक्लूडेड नहीं है. सो व्हाट वी विल डू, वी विल लेस. पहले मार्क लेस किया, अभी अनमार्क लेस करेंगे. ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में किसमें क्वेश्चन में बोला गया, देखो अनमार्क्ड एंड सरप्लस एप्लीकेशन टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो. ग्रॉस लायबिलिटी इज 2:3:4 एंड टोटल हमें पता है कितना है, 2,88,000. सो टेक योर कैलसी. 2,88,000 into 2 divided by 9, 64,000. सो यहाँ पे लिखेंगे 64,000. सेम विथ 2,88,000 divide by into 3 divide by 9 is 96,000. Finally 4 divide 1,28,000. सबको ऐड किया तो 2,88,000 मिल जाएगा. अभी how much you get? 1 lakh minus 64, you get 36,000, right? And 2,50,000 minus 96, 2,50,000 minus 96, do we get 1,54,000? 3,50,000 minus 1,28,000, do we get 222, 2,22,000? तीनों को ऐड करो या 7 लाख में 2,88,000 माइनस करो. बोथ द केसेस यू विल गेट 4,12,000. अभी क्या माइनस करेंगे, अभी क्या बचा है, फर्म अंडरराइटिंग माइनस करना बचा है. फर्म अंडरराइटिंग इज गिवन. फर्म अंडरराइटिंग कितना है वो दिया है 50, 60, 70 ना. Firm underwriting is how much? 50, 60, 70. So firm underwriting already given. So हम यहाँ पे लिखेंगे 50,000, यहाँ पे 60,000 शेयर्स, फिर यहाँ पे 70, 50, 60, 70 था. तीनों को ऐड करो कितना होता है, 50, 60, 70 is how much? 1,80,000. अभी ये भी माइनस करेंगे तो क्या हो जाए, मिलेगा अगेन बैलेंस. पहला वाला आंसर माइनस में आ रहे, minus 14,000. Next answer we are getting 94,000. Next answer we are getting 1,52,000. And next वाला we are getting 2,32,000. अभी क्या करना है, एक देखो नेगेटिव में दिख रहे तो उसका क्रेडिट एडजस्ट करना है. क्रेडिट एडजस्ट करना है. सो कौन सा रेशो, पहला वाला इस माइनस ना. सो 3:4 में डिवाइड करो. पहला वाला माइनस है उसको प्लस कर देंगे,
क्रेडिट एडजस्ट करने के लिए। सो 14,000 इंटू 3/7 कितना है? 14,000 इंटू 3/7, 14,000 इंटू 4/7, 8,000। यहाँ पे ऑटोमेटिकली नील हो जाएगा ना, 14 6 plus 14 minus 6 minus 8, automatically it will be 0. Finally कितना आ जाएगा? ये 0 हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा। अभी फाइनली क्या करेंगे? फाइनली हम लास्ट में व्हाट वी विल डू, हम जो हमारा फॉर्म अंडर राइटिंग है उसको लास्ट में पहला लेस किया, अब क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो वो तो कितना है? 50,000, 60,000, फिर 70,000, ये हो जाएगा 1,80,000। Now finally our net liability you may see or total liability you may say, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा कितना? 1,48,000, ये हो जाएगा 2,40,000, फाइनली 4,12,000. So with this is done. So let us do next sum. Okay. So Biggie Limited made an issue of 10,000 10% mortgage debentures of ₹100 each at ₹96. So what has happened here? ये जो Biggie Limited है, ये शेयर्स सेल करना, सॉरी नॉट शेयर्स, डिबेंचर्स सेल करना चाहता है 10,000, और ये 10% मॉर्गेज डिबेंचर्स है ₹100 का, बट इशू प्राइस इज 96, मींस दिस आर इशूड एट डिस्काउंट। ₹100 का फेस वैल्यू का डिबेंचर 96 में दिया, मींस किसमें? डिस्काउंट में इशू किया। The whole of the issue was underwritten by Smart Bulls. So Smart Bulls are the appointed underwriters for this issue, who are appointed by the company Biggie Limited. 8,500 debentures were applied for. The applications कितना मिला? 8,500 and allotted to the public. So 8,500 debentures का application आया, सारे डिबेंचर्स पब्लिक को अलॉट हुए। द अंडरराइटर डिस्चार्ज देयर लायबिलिटी। सो अंडरराइटर्स को क्या जिम्मेदारी थी? पूरा 10,000 शेयर्स को, डिबेंचर्स को, आई एम सॉरी, द 10,000 डिबेंचर्स को सेल करें, बट दे वर एबल टू ओनली सेल 8,500। तो उनके ऊपर कितना डिबेंचर डिवॉल्व हो जाएगा? 1,500 will be debentures will be devolved. Then net liability will be to purchase 1,500 debentures. समझ में आ रहा है? 10,000 debentures थे सेल करने, 8,500 पब्लिक को सेल हो गए। So underwriter discharge their liability. मतलब जितना उनका liability था वो उन्होंने discharge किया। They fulfilled their liability and were paid commission at the rate of 2% on the nominal value of the debentures. So commission किसके ऊपर पे हुआ?
very important, nominal value, how much percent commission? 2% commission given in the question and calculated on what? Nominal value of debentures. Nominal value means what? Face value. issue value पे नहीं निकालना है, किस पे निकालना है? Nominal value, which is 10,000 into 100. Nominal value क्या होगा? 100 rupees. इशू वैल्यू क्या है? 96 रुपीस पर डिबेंचर कमीशन किस पे होगा? नॉमिनल वैल्यू पे, फेस वैल्यू पे. डिबेंचर्स आई मीन कमीशन विल बी पेड ऑन नॉमिनल वैल्यू. सो शो जर्नल एंट्रीज. सबसे पहले लेट अस फाइंड आउट द लायबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर. लायबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर which is how much? सबसे पहले कितना ग्रॉस लाइबिलिटी है? हम लोग ऐसे ही निकालते ना लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स. हम अंडरराइटर्स का लाइबिलिटी ऐसे निकालते. स्मार्ट बुल्स को कितना शेयर डिबेंचर सेल करना है? 10,000, जिसमें से उसने कितना उसको एप्लीकेशंस मिला? Less applications received from public. Applications received from public. Is how much? 8,500. So उसका net liability कितना हो जाएगा? 1,500 will be his. That is the company's underwriter, appointed underwriters net liability. कितना डिबेंचर उसके ऊपर डिवॉल्व हो जाएगा? ये हमारे लिए इतना अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी जर्नल एंट्रीज हम पास कर सकते हैं. कितना एप्लीकेशंस मिला और कितना अंडरराइटर ने परचेज किया डिबेंचर. सबसे पहले एप्लीकेशन कितना मिला? See, we are preparing journal entries in the books of the company Biggie Limited. So Biggie Limited को applications मिला कितना शेयर्स के लिए? सॉरी डिबेंचर्स है तो बार बार आया मेरे मुंह में शेयर्स आ रहे. इट इज डिबेंचर्स. कितना डिबेंचर्स है? 8,500. एंड व्हाट इज द इशू प्राइस? 96. So 8,500 into 96 करो, how much you get? 8,16,000. Now smart bulls, that is the appointed underwriter, उसके ऊपर कितना liability है? net liability. Smart bulls limited account debit, उसके ऊपर कितना debentures खरीदने का? बिकॉज सी अंडरराइटर्स का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन. उतना नहीं हुआ जितना वैल्यू के लिए उनको अपॉइंट किया है उतना उनको सेल करना पूरा इशू के लिए. स्मार्ट बुल्स वेल अपॉइंटेड तो उन्होंने सिर्फ पब्लिक ने सिर्फ 8,500 परचेज किया. तो रिमेनिंग 1,500 का नेट लायबिलिटी इनको परचेज करना. व्हाट इज द इशू प्राइस? 96. So 1,500 into 96, how much it comes to? अब क्या हो जाएगा? इससे लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगा. लाइबिलिटी क्या है? 10% मॉर्गेज डिबेंचर्स. राइट? लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है ना. डिबेंचर्स मतलब लाइबिलिटी मतलब विच बैलेंस? लाइबिलिटी मतलब विच बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस. करेक्ट. और इसका फेस वैल्यू डिबेंचर्स का कितना है? 100 ना. इशू प्राइस क्या है? 96. तो 4 रुपीज का क्या दिया? डिस्काउंट. क्या है? लॉस है. लॉस है मतलब डेबिट में आएगा. डिस्काउंट ऑन डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. इशू ऑफ debentures account debit
हाउ मच डिस्काउंट 4 रुपीज का, सो 10,000 इंटू 4, करेक्ट। टोटल डिबेंचर्स कितना है 10,000, जिसमें से 8,500 पब्लिक ने खरीदा, 1,500 अंडर राइटर ने, सो टोटल कितना है 10,000, जो 96 रुपीज में इशू किया, सो 4 रुपीज का क्या है discount, which is coming to how much? This is coming to 40,000 being debentures issued at discount to public, being debentures issued at discount to public and balance subscribed by underwriter, and balance subscribed by underwriters. Only one underwriter is there. Now next entry हमारे लिए important है कमीशन का. Now tell me, कंपनी के लिए कमीशन इनकम है क्या एक्सपेंस है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सो हम डेबिट में लिखेंगे अंडर राइटिंग कमीशन ना, अकाउंट डेबिट. मुझे बताओ ये कमीशन किसको पे करेगा कंपनी? हु इज द अपॉइंटेड अंडरराइटर? स्मार्ट बुल. समझा? अंडर राइटिंग कमीशन डेबिट में क्यों है? बिकॉज कंपनी के लिए ये कमीशन एक्सपेंस है. कंपनी बिगी लिमिटेड हैज टू पे दिस कमीशन. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट में आया. नाउ किसको पे करेगा ये कमीशन? स्मार्ट बुल्स अकाउंट, राइट. कमीशन किस पे निकालना है? नॉमिनल वैल्यू पे. कितना परसेंट गिवन इन द क्वेश्चन? 2% कमीशन ऑन नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर. तो अंडरराइटर ने टोटल 10,000 डिबेंचर सेल किया. नॉमिनल वैल्यू इज 100 रुपीज. नॉमिनल वैल्यू फेस वैल्यू इज हाउ मच? नॉमिनल वैल्यू को तुम फेस वैल्यू भी बोल सकते हो. एक डिबेंचर का फेस वैल्यू है 100 रुपीज. सो 10,000 इंटू 100 पे कितना परसेंट कमीशन? 2%. तो कितना हो जाएगा? 20,000. समझ में आया? 10,000 डिबेंचर्स को सेल किया. कितना डिबेंचर्स को सेल किया है? 10,000 डिबेंचर्स को सेल किया है. उसका नॉमिनल वैल्यू है 100 रुपीज, जिसपे कमीशन चार्ज होगा 2%. सो टोटल कमीशन जो स्मार्ट बुल्स को मिलेगा वो है 20,000. सो फाइनली स्मार्ट बुल्स अपना लाइबिलिटी डिस्चार्ज करेगा. जिसको क्या बोलेंगे? कमीशन क्या है? ये ड्यू है ना, अभी तक पे नहीं किया है, ड्यू है. बीइंग अंडर राइटिंग कमीशन, पेएबल भी बोल सकते हैं या ड्यू भी बोल सकते हैं. अभी तक पे नहीं किया, पहले तो ड्यू कैलकुलेट करते हैं ना कितना देना चाहिए. ये हो गया. अब फाइनली कमीशन रिसीव करते हैं और स्मार्ट बुल अपना लाइबिलिटी डिस्चार्ज करेगा. स्मार्ट बुल को क्या करना है? 1500 जो 1500 डिबेंचर्स उसने खरीदा है उस पे 96 रुपीज, दैट इज उसको कितना पैसा पे करना है? 1,44,000 रुपीज. बट उसको कंपनी से मिलना कितना पैसा है? 20,000. तो स्मार्ट बुल कितना पैसा पे करेगा? तो कंपनी को पैसा मिलेगा. When स्मार्ट बुल is paying their money, कितना पे करना था? 1,44,000. जिसमें से कंपनी को कितना पे करना था? स्मार्ट बुल को 20,000. तो रिमेनिंग अमाउंट स्मार्ट बुल will pay. Who will be the giver?
देखो स्मार्ट बुल डेबिट में था, जब पैसा मिलना चाहिए। अब जब वो अपना पैसा पे करेगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट में हो जाएगा। स्मार्ट बुल्स लिमिटेड अकाउंट, ये क्या हुआ है, उसने उसका लाइबिलिटी सेटल किया, राइट, बीइंग बैलेंस amount due settled by underwriter। जितना बैलेंस अमाउंट था वो अंडरराइटर ने क्या कर दिया, देखो स्टार्टिंग में 8,500 एप्लीकेशन का पैसा मिला, बट स्मार्टफोन ने अपना पैसा नहीं पे किया था, फिर कमीशन का उसको 20,000 मिलना चाहिए, तो टोटल वो कितना पैसा देगा, 1,44,000 उसको पे करना था, 20,000 उसको मिलना चाहिए, तो बैलेंस अमाउंट उसने क्या किया, 1,44,000 minus 20, balance amount he has paid to the company, right? So with this journal entries is done. This question also complete. Thank you very much everyone.